Hello everyone. So today again I'm very delighted to welcome you all in my YouTube channel named IELTS with Experts. So today in this tutorial I'll share some tips regarding the writing task 1 and writing task 2. So the topic name is here writing task 1 and writing task 2 tips and tricks. There are so many viewers which I have observed that they just wanted me to prepare this particular video, right? So here, that is why I am just posting this video on the YouTube. So before starting, I would like to thank you all for supporting me and for watching my videos, as this is the only thing which motivates me to to make continuous to upload continuous like videos on the YouTube, so that I could be helpful for you all to learn and grow. So here I would request you all to consider subscribing my channel and sharing it, because if you will subscribe, so definitely it'll help you out in getting the awareness if I will upload any of the new video, so that it could be helpful for you to make a better change in your life, right? Okay, so let's get started. So here today I'll start with the connectors. So my first topic will be of connectors in this tutorial. So here there are so many students who generally get confused while using the connectors, as they know that what is the actual the usage of connector, but they only know that how they have to use the connectors. But there are some of the students also who generally use any of the connector in their like while making the comparisons or while delivering their answers. So here I just need to clear one thing to you all, that comparisons basically the connectors you can use basically on the basis of comparisons, on the basis of additions and on the basis of sequence. So there are connectors जो हम particularly अलग अलग report writing में अलग अलग tasks में use करते हैं. So here first of all I'll be starting with the comparisons one. ठीक है बेटा. So जब हमने comparisons करने हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंपैरिजन्स किस किस में करते हैं, हमारी रिपोर्ट राइटिंग इज़ देयर, राइट? सो हम कंपैरिजन जो है वो रिपोर्ट राइटिंग में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अपना बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल है, ठीक है, देन उसके बाद लाइन ग्राफ है, मैप है. दीज आर द 5 थिंग्स, ओनली दीज आर द 5 थिंग्स. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, लाइन ग्राफ एंड मैप. ओनली दीज आर द 5 रिपोर्ट राइटिंग्स वेयर यू हैव टू यूज़ द कंपैरिजन ऑफ कनेक्टर्स. और आप इसमें से इसके अलावा कोई भी कनेक्टर बेटा इनमें यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इनका मतलब ही आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को, फिगर्स को यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू मेक कंट्रास्ट बिटवीन दोज, राइट? सो हियर फर्स्ट जो मेरे पास कंपैरिजन का कनेक्टर है बेटा वो है टू जक्सटापोज. JUX जक्स, TAPOSE पोज, राइट? सो टू जक्सटापोज जिसे हम लिखते हैं ना इन कंट्रास्ट, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, या वेयर एज लिखते हैं. तो टू जक्सटापोज जो है वो आपका एक अच्छा वोकैबुलरी वर्ड भी आ जाएगा, एंड आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन के लिए इसको एज अ कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हो. देन सेकेंड वी हैव वेयर एज. ये तो आप सब यूज़ करते हो कंपैरिजन करने के लिए. देन अगेन वी हैव वाइल. देन नेक्स्ट वी हैव विल्स्ट. ठीक है बेटा, कई बच्चे हैं जो यहाँ पे विलिस्ट यूज़ करते हैं, WHILIST. सो प्लीज़ कंसीडर दिस वर्ड, दैट द स्पेलिंग्स ऑफ दीज like this particular fourth like the word which has been written in the fourth number is whilst, WHILST, right? Next here I have the like the connector which is in contrast. Next you can also use contrastingly, and last it will be however, right? So these are the 7 connectors which basically you all have to use while making the comparisons, only in the case of pie chart, table, bar graph, line graph and the map.
right? You are not supposed to use any other connector while making comparisons in these 5 question types. Is it clear? ठीक है. So these are the connectors for comparisons. You can take the screenshot if you want, right? Or you can like pen down on your any of the notebook, so that could be helpful for you later on while using your like these connectors in your writings. Okay, so I'll move forward towards the connectors of sequence. So sequence के connectors, as you know, sequence means step by step. So ये connectors हम किस पे यूज़ करते हैं? जैसे कि हमारे पास लाइफ साइकिल आता है, जैसे हमारे पास फ्लो चार्ट आता है, जैसे हमारे पास किसी चीज़ का प्रोसेस आता है, right? So these are the connectors which you have to use in the sequence report writing. ठीक है, जहाँ पे आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है. जैसे कि मैंने आपको दोबारा से आई एम रिपीटिंग, ठीक है, आई एम रीआइटरेटिंग इट दैट यू हैव टू यूज़ दिस while doing life cycle, while doing process chart, while doing your अपना क्या कहते हैं आपका जो आपका सीक्वेंस में फ्लो चार्ट आता है, राइट? सो हियर फर्स्ट हमारे पास कनेक्टर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? इनिशियली. सो सबसे पहले इनिशियली मतलब इन द स्टार्टिंग, ठीक है, इनिशियली. देन आप यूज़ कर सकते हैं देयर आफ्टर. देयर आफ्टर मतलब इसके बाद, आफ्टरवर्ड्स मतलब इसके बाद. फिर से हमारे पास क्या आ गया? आफ्टर दैट. यहाँ पे मैंने अगेन गलती से देयर आफ्टर लिख दिया. आप 4th नंबर पे आफ्टर दैट ऐड कर सकते हो यहाँ पे. 5th पे क्या आ गया? फॉलोइंग दिस, राइट? देन उसके बाद देन, फिर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेप. जब आप कोई स्टेप लिखते हो तो उस स्टेप के एग्जीक्यूशन के बाद, फॉर एग्जांपल आपने मशीन्स में क्रशिंग करवानी है किसी चीज़ की. सो क्रशिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? जो हमारे पास जो भी मटेरियल आएगा, ठीक है, क्रशिंग के बाद जो भी हमारे पास एक पाउडर फॉर्म में मटेरियल विल बी देयर, उसको हम क्या करेंगे? कंटेनर्स में स्टोर करेंगे. तो आप कैसे कह सकते हो? आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ 4th स्टेप. 4th स्टेप की एग्जीक्यूशन के बाद जिसमें क्या हुआ था? वेयर क्रशिंग वॉज परफॉर्म्ड इन द विद द असिस्टेंस ऑफ मशीन्स. क्या हुआ? कॉमा डाल के क्या बताओगे? द पाउडर्ड फॉर्म प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन. कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इज गैदर्ड इन, इज स्टोर्ड इन, इज प्रिजर्व्ड इन अ पर्टिकुलर कंटेनर, राइट? सो आप ऐसे इस कनेक्टर को यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेप. नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है इन नेक्स्ट स्टेप, राइट? ये भी लिख सकते हो. बिसाइड्स, इसके अलावा. नेक्स्टली, इसका भी मतलब है कि इसके आगे एट लास्ट. जब आपने लास्ट बताना है तो बेटा आप क्या बताओगे? एट लास्ट. सो दीज आर द कनेक्टर्स जो बेटा आप किस में यूज़ करते हो? सीक्वेंस में यूज़ करते हो. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. सीक्वेंस मतलब आपका लाइफ साइकिल, आपका फ्लो चार्ट, आपका कोई प्रोसेस चार्ट. इसके अलावा कोई भी कनेक्टर आप इन तीनों रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ नहीं करोगे. दीज आर द कनेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस, राइट? सो इनिशियली, देयर आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, after that, following this, then after the execution of this step, in the next step, besides, nextly, and at last. देन हियर वी हैव अ कनेक्टर ऑफ एडिशन. बेटा अब हमने सारे क्वेश्चन टाइप्स के बारे में बात कर ली कि हमने कनेक्टर कौन सा कहाँ पे यूज़ किया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टास्क 2 की. पहले हमने टास्क 1 की बात करी. टास्क 2 में वेन एवर यू हैव टू ऐड अ न्यू पॉइंट. बेटा जब भी आपने एक पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, पहले आप पॉइंट बताते हो, फिर उसको एक्सप्लेन करते हो, फिर उसकी एग्जांपल देते हो, फिर आप अनदर पॉइंट ऐड करते हो. सो व्हेन एवर यू हैव टू ऐड द अनदर पॉइंट, सो उस टाइम पे आप एडिशन के कनेक्टर्स यूज़ करोगे ऐड करने के. दैट मीन्स एडिशनली यू कैन राइट, मोर ओवर यू कैन राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा यू कैन राइट, furthermore you can write, as well as you can write, and even you can use subsequently here. it also means कि आप next line के towards move करने वाले हैं कि additionally इसके अलावा also along with this there is also one thing, right? so these are the connectors of एडिशन. देन बेटा जब आपने एक पॉइंट की एग्जांपल देनी है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, सो व्हाट आर द कनेक्टर्स विच यू कैन यूज़ हियर वी हैव 7 कनेक्टर्स. सो फर्स्ट इज बेटा फॉर इंस्टेंस. आप स्पेलिंग्स देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के लिए. फॉर इंस्टेंस है. फिर उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है? टू साइट एन एग्जाम्पल. CITE वाला साइट एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं. टू एग्जाम्पलीफाई लिख सकते हैं. बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें लाइक एक डाउट रहता है कि मैम जनरली आप क्या करते हो
कि मैम एग्जाम्पल में तो ए आता है EXAM, बट बेटा जब हम एग्जाम्पलीफाई लिखते हैं तो हम ई लिखते हैं, राइट, EXEM। सो एग्जाम्पलीफाई की स्पेलिंग याद रखना। टू इलस्ट्रेट लिख सकते हैं। बेस्ट एविडेंस टू दिस इज दैट, एक बेस्ट एविडेंस जो है इसका ये है। इज इट क्लियर? टू एपिटमाइज, दैट के बाद बेटा मैंने कॉमा नहीं लगाया क्योंकि दैट के बाद हम कॉमा यूज नहीं करते, बिकॉज हेयर वी हैव टू एक्सप्लेन फॉर द थिंग, राइट। नेक्स्ट उसके बाद टू एपिटमाइज, एपिटमाइज मतलब भी क्या हो गया? टू इलस्ट्रेट, टू गिव एन एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इलाबोरेशन के कनेक्टर्स आ गए। आपने एक पॉइंट बताया, अब आपने एग्जाम्पल से पहले उस पॉइंट को ऐड एक्सप्लेन भी तो करना है। सो आप एक्सप्लेनेशन के लिए कई बच्चे क्या करते हैं? बिकॉज यूज़ करते हैं कि भाई जो एक हमारे पास मान लो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो हमें एजुकेशन में हेल्प करते हैं, हमारी स्किल्स को इन्हांस करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज आगे एक्सप्लेन करते हो ना उसको कि हमारे पास कितने सारे लाइक एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, या फिर मतलब आजकल तो सारी जगह पे सोशल मीडिया पे हमें वैल्यूएबल डेटा मिल ही जाता है, ठीक है। सो आप वहाँ पे एलैबोरेट करने के टाइम पे व्हाट कनेक्टर्स यू कैन यूज़ हियर आर टू मेक इट मोर प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है क्लियर, सो टू मेक इट मोर क्लियर, टू मेक इट मोर प्रिसाइज। आगे दिस इज टू से दैट, इसका मतलब ये है, दैट के बाद बेटा कॉमा नहीं आएगा। टू एक्सप्लेन, टू एलैबोरेट, टू एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट का मतलब भी क्या है? एक्सप्लेन, टू जस्टिफाई, टू कोरोबोरेट, ठीक है बेटा। ये जो टू कोरोबोरेट है ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो वोकैबुलरी वर्ड है ना कोरोबोरेट, ये मेरी रीडिंग वाली जो रीडिंग वाले मेरी वीडियो है ना जिसमें मैंने डाला हुआ है कि मोस्ट कॉमन वाइडली सीन जो वोकैबुलरी वर्ड्स हमारे पास आते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स जो हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो वाले वर्ड्स के बारे में भी मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, वहाँ पे भी ये वाला वर्ड आपको मिल जाएगा। और वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि वो कुछ ऐसे सेलेक्टेड कीवर्ड्स हैं, आपके वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो आपको हर जगह पे रीडिंग में मिल सकते हैं। सो मस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है? रिजल्ट्स के लिए बेटा जब हम पैरा के लास्ट में लिखते हैं तो रिजल्ट्स के लिए क्या आता है? कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, डज, देयरफॉर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रिजल्टिंगली भी यू कैन ऐड हियर। उसके बाद बेटा यहाँ तक हो गए हमारे कनेक्टर्स फिनिश। सो सेकंड टॉपिक इन दिस ट्यूटोरियल विल बी ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे हम कॉमा लगाते हैं, है ना। सो मैं क्या आपको बताने वाली हूँ, बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमें कॉमा कब यूज़ करना है। सबसे पहले तो बेटा कीप दिस इन योर माइंड that you do not have to use comma after using that, ठीक है। whenever you were explaining something, so that के बाद आप कॉमा नहीं यूज़ करेंगे, चाहे आपका टास्क 1 है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो ना इट इज़ ऑस्टेंसिबल दैट, मतलब इट इज़ क्लियर दैट, राइट। सो दैट के बाद कॉमा नहीं यूज़ करोगे। अगर आप लिख रहे हो इट इज़ क्लियर कॉमा, फिर आप यूज़ कर सकते हो, बट दैट के बाद कॉमा नहीं आएगा। सेकेंडली यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ कॉमास बिफोर एंड आफ्टर, आपको कॉमा पहले भी यूज़ करना है और बाद में भी यूज़ करना है। द कनेक्टर, इफ़ यूजिंग कनेक्टर इन बिटवीन लाइन, अगर आप एक लाइन के ख़त्म होने से पहले बीच में ही कनेक्टर यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ओबेस पीपल वॉज 120% while the least was 10%, राइट। सो यहाँ पे आपने मैक्सिमम मिनिमम का कंपैरिजन किया तो आपने एक ही लाइन के बीच में क्या चीज़ करी है? आपने यहाँ पे कनेक्टर यूज़ किया है। सो फुल स्टॉप के पहले जब आप विद इन द लाइन कनेक्टर यूज़ करते हैं वाइल मेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, सो वहाँ पे बेटा पहले भी कॉमा लगाते हैं, बाद में भी कॉमा लगाते हैं। सेकेंडली थर्डली हमारे पास क्या आ जाएगा? यूज़ कॉमा ओनली आफ्टर कनेक्टर, इफ़ यू आर यूजिंग द कनेक्टर आफ्टर फुल स्टॉप। बेटा अगर आप फुल स्टॉप के बाद कॉमा कनेक्टर लगा रहे हैं, सो डेफिनेटली यू नो दैट द कनेक्टर विल बी रिटन इन द अपर केस। बड़े लेटर्स में जो कनेक्टर है वो आप क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद आप फुल स्टॉप के बाद कनेक्टर लिख के कॉमा लगाएंगे, ओनली वन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पंक्चुएशन। देन लेट्स टॉक समथिंग अबाउट कंक्लूशन। कंक्लूशन में बेटा आपको क्या करना है? डू नॉट ऐड एनी न्यू आइडिया हेयर। मैंने देखा है बहुत बच्चे यहाँ पे नया आइडिया ऐड करते हैं, हमें नया आइडिया ऐड नहीं करना है, ठीक है। ऐड ओनली क्रक्स, आपको क्या करना है? सिर्फ आपको क्रक्स ऐड करना है, सिर्फ आपको कंक्लूजन ऐड करना है। इज इट क्लियर? कंक्लूजन मतलब आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सिर्फ आप उसमें रिकमेंडेशन देंगे या फिर आप ओवरऑल बताएंगे, जैसे कि
आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्दो येट। ऑल्दो मतलब बेशक ऐसा है, बट हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बेशक जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो हमारे लिए एडवांटेजियस हैं, बिकॉज़ ये हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, येट हम इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वी कैन नॉट ओवरलुक इट, राइट, या फिर इट्स ड्रॉबैक्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। सो हमने जब भी बनाना है तो हम ऑल्दो येट से या तो बना सकते हैं या फिर हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ़ गवर्नमेंट सॉरी क्या लिख सकते हो, राइट स्टेप्स एट द राइट टाइम शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट और द लॉ मेकर्स इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द चेंज लाने के लिए, मॉडिफिकेशंस करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चेंज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो आप यहाँ पे आइडिया ऐड नहीं करेंगे। आइडिया बेटा सिर्फ यू विल ऐड इन BP1 BP2। आई हैव ऑब्जर्व सो मेनी स्टूडेंट्स who do this common mistake, so you are not supposed to do this, right? So I think like everything is clear about the conclusion now. Okay, let's have a look up on the thesis statement. Thesis statement के लिए बेटा I have the tips that write answer to the question carefully, मतलब आपको आंसर बहुत ही ध्यान से लिखना है, इवन केयरफुली अंडरस्टैंड इंटायर स्टेटमेंट बिफोर मैंशनिंग द आंसर, ठीक है। सो आंसर को मेंशन करने से पहले बेटा आप क्या करेंगे, सारे लाइक क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे, एंड यू विल लाइक मेक अ प्लान इन योर माइंड कि आपको क्या करना है। BP1 में कौन से 2 पॉइंट्स लिखने हैं, BP2 में कौन से 2 पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बेटा क्या आ गया, म्यूजियम्स जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हमें हमारे लिए एजुकेशनल पर्पसेस हमें सर्व करते हैं, वाइल कुछ लोग कहते हैं कि म्यूजियम्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट सोर्सेस जो हैं बेसिकली लोगों के लिए बन गए हैं। सो BP1 में आपने दोनों पॉइंट्स बताने हैं, BP1 में आपने एक पॉइंट बताना है, BP2 में सेकंड पॉइंट बताना है। BP1 में हमने बताना है ये एजुकेशनल क्यों है, बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन या इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट एंड पास्ट रिलेटेड थिंग्स। आप इसके एक्सप्लेनेशन में आपने एक पॉइंट सोच लिया, पास्ट रिलेटेड थिंग्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट आप क्या सोचोगे और कैसे नॉलेज प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन कार्व्ड ऑन द स्टोन्स, जो वहाँ पे पत्थरों पे इन्फॉर्मेशन जड़ी होती है ना, लिखी होती है ऑलरेडी, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस स्कल्पचर्स या फिर आपके कॉइन्स हो गए, स्वॉर्ड्स हो गए या फिर पोर्ट्रेट्स हो गए, विच आर मैनिफेस्टेड ओवर देयर, राइट। सो ये 2 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में ऑलरेडी रख लिए, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ईजिली कर पाओगे। एंड 2 पॉइंट आपने BP2 के भी सोचने हैं कि जैसे हमारे लिए ये कौन सा मीन्स जैसे क्या टॉपिक लिया था हमने, यस ये हमारे लिए रिक्रिएशनल पर्पसेस क्यों सर्व करता है, कैसे सर्व करता है। आप ये बोलोगे कि शॉर्ट क्लिप्स, शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो क्या की जाती हैं, वहाँ पे प्ले करी जाती हैं आज के टाइम पे म्यूजियम्स में, जो लोगों को क्या करती हैं, ऑडियो विजुअल्स की वजह से अट्रैक्टिव लगती हैं, राइट। सो यहाँ पे आप ये चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप क्या बता सकते हो कि क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं कई म्यूजियम्स में आजकल, जिसमें बच्चों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी उनकी इन्हांस होती है, हाउएवर उनको प्राइजेस गिफ्ट्स भी मिलते हैं, दे आर रिवार्डेड विद द गिफ्ट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको ये रिक्रिएशन एक्टिविटी लगती है एंड दे टेक इट एज अ स्ट्रेस बस्टर, ठीक है, क्लियर है। सो ऐसे आप दोनों पॉइंट्स जो बेटा पहले ही अपने माइंड में सोच लो, उसके बाद आप जो है अपनी राइटिंग स्टार्ट करो। एंड थीसिस स्टेटमेंट में आप क्या करोगे, आपने जो BP1 BP2 में लिखना है ना, आप उसका आंसर दोगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आई अग्री विद में पूछा ही नहीं गया होता और वो लिख देते हैं आई अग्री विद द स्टेटमेंट। बेटा पहले देखो, you have to evaluate that what has been asked from you. If the statement is asking is it a positive or negative trend, तो अगर आप बोलोगे पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव क्यों है, अगर आप बोलोगे नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है, ठीक है। अगर पूछा है व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन पूछा है, सो वो तो चलो डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया, ठीक है। अगर बोथ व्यूज प्लस योर ओपिनियन पूछा है, फिर आप बताओगे ना आई एम इन द फेवर ऑफ फॉर्मर या आई एम इन द फेवर ऑफ लेटर। अगर आपको पूछा है अग्री और डिसएग्री, डू यू अग्री और डिसएग्री, फिर आप बताओगे कि मतलब मैं अग्री साइड पे हूँ या फिर मैं डिसएग्री साइड पे हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कंसीडर द क्वेश्चन स्टेटमेंट दैट व्हाट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम यू, राइट। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो ऑन दैट बिहाफ you are supposed to write the thesis statement that yes, this essay will highlight or this essay will expound or this essay will elaborate
the advantages and disadvantages, or this essay will elaborate my viewpoints on the agreement, or this essay will highlight both the viewpoints along with my viewpoint, or this essay will highlight the pessimistic approach or the optimistic approach. Optimistic is the word which is used for the positive, and the pessimistic is the word which we use for the negative ones, right? So these is the, like, these are the things, this is the way in which you have to write your thesis statement, right? Hope this is clear to you all. Okay, let's move further. So here, second point I have written here is avoid writing idioms in your writing. Beta, there are so many students जो generally मुझसे पूछते हैं आके कि मैम हम idioms use कर सकते हैं. Like it is recommended to us by our trainers that you have to use the idioms while attempting your speaking module. So yes, beta, in your speaking you can use the idioms because you are communicating with someone. So वो क्या करेगा, आपकी skills को थोड़ा enhance बनाएगा, communication skills को. But here in writing बेटा, you are not supposed to use the personal pronouns, है ना? So personal pronouns use भी नहीं कर सकते हो जैसे आप speaking में करते हो. So similarly likewise आप क्या करते हो बेटा, आप ऐसे ही idioms use नहीं करोगे. आप क्यों नहीं करोगे? Because जो idioms हैं वो क्या हैं, वो थर्ड पर्सन के हमारे पास राइटिंग आ जाती है, ठीक है. सो थर्ड पार्टी नोशंस आ जाती है, स्टेटमेंट आ जाती हैं जो आप बेटा यूज़ नहीं करोगे. एंड द रीडिंग मॉड्यूल, इन द रीडिंग मॉड्यूल योर राइटिंग स्किल्स आर जज्ड हेयर. सो दैट्स वाई यू आर नॉट सपोज टू यूज़ द ईडियम्स. इज इट क्लियर बेटा? So this was all about the today's tutorial. Hope everything is clear to you all. ठीक है. So hope you all found my this video of tips and tricks very helpful. आपकी कहीं ना कहीं जो मिस्टेक्स हैं बेटा वो तो ठीक होंगी, एंड डेफिनेटली ये आपको हेल्प करने ही वाली हैं टिप्स. एंड इफ़ यू ऑल वांट मी टू मेक like more videos like similar to these contents, then you can freely write in the comment section, and definitely I'll consider those requests, and definitely I'll make more videos on those like contents to clarify it, right? So here again I will say that if you haven't subscribed the viewers who are new here on this channel, so I'll definitely request you all to subscribe my channel, so that it could be helpful for you as well as for me, for you in the way to get like the new information, right? And for me it'll be a source of motivation to make more videos. So must subscribe this video, and thank you for your support. Okay, bye bye. We'll meet you in the new video with more content.